Good morning. Now today let us see the transpose of the matrix. Transpose of the matrix. Let E IJ Mn matrix. Now interchanging the row and column. Now if you interchange the row and column of this matrix, then you get a new matrix, then you obtain a matrix. That matrix is known as the transpose of A. That is a now interchanging the row and column of this. Interchanging the row, interchanging the now A, let A be, A क्या है, A mn मैट्रिक्स है. नाउ इफ यू इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, अगर इसका हम या तो रो चेंज कर दें या तो कॉलम चेंज कर दें, तो जो न्यू मैट्रिक्स आती है उसको हम डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करेंगे? उसको हम डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज. और ए डैश से डिनोट करते हैं. टी मैट्रिक्स जो आएगा वो ट्रांसपोज ऑफ ए होगा. तो ट्रांसपोज ऑफ ए होगा ए जे आई. रो एंड कॉलम, यहाँ आईएथ रो है, जेएथ कॉलम है. यहाँ क्या है? जेएथ रो और आईएथ कॉलम दोनों क्या हो गया? चेंज हो गया. तो रो और कॉलम चेंज हो जाते हैं. रो एंड कॉलम चेंज करते हैं तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा? इसका ऑर्डर भी चेंज होगा. एन इंटू एन, तो ए टी, ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ ए. ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ ए. फॉर एग्जाम्पल, नाउ if you consider a matrix C that is 3 root 3 and 0, 3 root 3 and 0, 5 1 minus 1 by 2. Now if you consider a matrix, the order of this matrix is what? That is 3 into 2. Now if you want to find the transpose of A, अगर हमें A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? A का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज व्हाट? A डैश. A डैश या A ट्रांसपोज लिखें, A डैश. इसमें क्या होगा? चेंज द रो इन कॉलम. तो चेंज द रो, फर्स्ट रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे 3 5. रूट सेकेंड रो क्या हो जाएगा? 3 1. सेकेंड रो को कॉलम में चेंज कर दिए 3 1. थर्ड रो को कॉलम में चेंज किए, क्या हो गया? 0 माइनस 1 बाई 2. तो हमारा न्यू मैट्रिक्स आ गया. तो न्यू मैट्रिक्स क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3. तो ये हमारा मैट्रिक्स ए डैश हो गया. तो ए डैश इज द transpose of A. Now let us see some property of the transpose of matrix. ठीक. Property of transpose of the matrices.
property of transpose of matrices. Now let us see property of transpose of the matrices. So now there are four property of transpose of the matrices. First, if A is the square matrices, let A and B, A and B, A and B, B square matrices, if A and B are the square matrices, then we can get A and B are square matrices or any matrices. Now you can see A and B are, here you write A and B are matrices. Let A and B are matrices. Then the first property transpose of the transpose that matrix itself. And second, now if you multiply with a constant in a matrix and we find that transpose, then we multiply the constant in the transpose of the matrix. We get the Ka, their transpose, that is a Ka dash. Ka dash. This will be the transpose of the matrix. Now third, if there are two matrices A plus B, the A plus B dash, that is the A dash plus B dash. And now we get the fourth, that is the fourth is the just as. Now if you consider, if you take the transpose of AB dash, so now if you take the transpose of AB dash, then what happened in this the order of the matrix, just as here the B is right hand side, now this will be in the left side, this become B dash A dash, this will be changed. And by taking the some example of the matrix, we can verify this. Now here you see, now the first, second and third are very simple. Now you can take some examples of the matrices and you can verify these first, second and third formula easily. Now let us see the fourth one. To verify the fourth formula, so what can you do to verify this fourth one? To verify the fourth one, now let us see examples. Now consider the example. Consider A is a matrix minus 2, 4, 5. A is a matrix, that is the minus 2, 4 and 5. A is a matrix. A is the matrix, and now consider the another matrix. Now consider the another matrix 1, 3 minus 6. Now consider the B is the another matrix, that is 1, 3 and minus 6. Consider the another matrix. Now see the order of this matrix. The order of this matrix, how many row? 1, 2, 3. There are 3 row. First row, second row, third row. The 3 and column is 1. The order of this matrix is 3 and column is 1. And order of this matrix, that is how many row? 1 row. And how many column? 3. The number of column, number of row of this. What happened? The number of column of A is what? 1. And the number of row of B is 1. So now the product is possible. So that
we can find the a product of AB. So now here you find the product of AB. Now find the first product of AB. The first find their product. We get the AB. Now we get the AB. So we get what? -2, 4 and 5. We write this and write the B. B is what? 1, 3, -6. Now we get this and write their product. So to find their product, we write this. Find their product. That will be what? The first row multiply in the first column. The first row multiply in the first column. So now if you multiply the first row in the first column, फर्स्ट रो क्या हुआ -2 और यहाँ क्या हुआ 1, तो -2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2। अब फिर -2 को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -6 और फर्स्ट रो को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 4 1 4, 4 को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 24। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 क्या है थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम क्या है 1, तो 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। 5 को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3, 15 हो गया। अब 5 को 6 में करेंगे तो 30 हो गया -30। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा हो गया AB प्रोडक्ट, AB प्रोडक्ट। अब हम AB डैश फाइंड आउट करते हैं। AB डैश फाइंड आउट करेंगे तो AB डैश फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ जब हम AB डैश फाइंड आउट करते हैं यहाँ तो AB डैश तो चेंज द रो इन कॉलम, change the row in column or column in row. So now we change the row in column. So now change the row in column, that is what -2, -6 and 12. Change first row in first column 4, 12 -24 and 5, 15 and 30, 5, 15 and 30, 5, 15 and -30, here is the -30, 5, 15 and -30, so this will be what? This is the transpose of AB. So now we find the product of AB and then find the transpose. So now next this is the AB dash, next we find the A dash. Now let us see what is the A dash. Find A dash. A dash, the transpose of, that is what? Change this in one column, this will be one column or 3 row, to change this in column, so this will be what? -2, 4 and 5, this one, and this is A dash, and get the B dash. We get the B dash. B dash is what? 1, 3 -6. This will be the B dash. This is a row, change the row in column and column in row. The order of this what? 1 into 3. This will be 1 into 3 and this will be what? 3 into 1. So now here you see each B dash A dash is possible. Now because the order of this is what? 3 into 3.
So that is A dash B dash is also possible because the number of column of the A is also equal to the number of row of this. Now these A dash B dash is also possible, but if you multiply A dash B dash, then you find that will be not equal to AB transpose. That because we find a matrix of order 1 by 1. Because 3 is 3, the because you find the matrix of order 1 by 1. Here is what? Here is the matrix of order 3 into 3. यहाँ 3 into 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ हमें 1 into 1 का मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा, तो ए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम बी डैश ए डैश फाइंड आउट करेंगे तभी इसके इक्वल हो सकता है। अब देखते हैं बी डैश ए डैश क्या होता है। बी डैश ए डैश फाइंड आउट करते हैं, बी डैश ए डैश फाइंड आउट करते हैं, बी डैश ए डैश फाइंड आउट करते हैं। बी क्या है हमारा 1 3 माइनस 6, ये बी हो गया। ए क्या है हमारा -2 4 और 5, ये हो गया। अब इसका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं। जब इसका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है इसका प्रोडक्ट। तो फर्स्ट रो 1 है, यहाँ फर्स्ट कॉलम 1 है, तो यहाँ आ जाएगा -2 और फिर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4, फिर यहाँ आ जाएगा 5। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -6, 3 का 4 में 12, इसी तरह से 3 का 5 में 15, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 12, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे -24, -6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये भी ऑर्डर 3/3 क्या है, तो हम कर सकते हैं कि ए बी डैश ए बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू द दैट इज दिस implied that these two implied that what transpose of a b dash that will be equal to b dash a dash. Thus by example we can verify this। ठीक, तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दिस विल बी वेरीफाइड। ठीक, तो ये हो गया ट्रांसपोज। अब हम देखते हैं कि अब हमारा क्या हो गया, रह गया है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो नाउ लेट अस सी द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इन दिस सिमेट्रिक and skew symmetric matrices is अब हम देखते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। Symmetric and skew symmetric and skew symmetric matrices. So now let us see symmetric and skew symmetric matrices. Skew symmetric matrices. So now let us see symmetric and skew symmetric matrices. In this a square matrices, a square matrices is Aij of order square matrices Aij, that will be a square matrices. This is the square matrices.
तो A is the square matrices. A square matrices A is said to be symmetric. This will be symmetric. Symmetric, that is the square matrices. This will be symmetric, and when this will be symmetric, A symmetric होगा कब? जब ट्रांसपोज ऑफ A that will be equal to A itself. तो A क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिसेस. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. हम एग्जाम्पल लेते हैं √3 2 3 A द मैट्रिसेस √3 2 3. हम एग्जाम्पल लेते हैं -2 -2 1/2 -1 -2. Now take the example. Here you get this 2 करते हैं -1/2 -1 and 3 -1 1. ये हम एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक, अगर हमें इसको चेक करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस है कि नहीं, दिस विल बी द स्क्वायर मैट्रिसेस of order 3 into 3. So that A is the square matrices. Now find the A transpose. So now if you find the A transpose, then you get what? You get √3 2 3 2 -1/2 -1 3 -1 1. Change the row. First row in first column, second row in second column, third row in third column. Then you get the matrix 3 into 3. So this is what? A dash is equal to A dash. The A dash that will be equal to A. So that what? So that this will be the symmetry. So this is the symmetry. So this matrix is the symmetry. So this is the symmetric matrices. And skew matrices. Now next is the second symmetric. A square matrices is said to be skew symmetric. This will be skew symmetric if this will be A dash equal to -A. If A dash transpose of that is the negative of the matrices. If you find the transpose of A, that is the negative of the matrices. Now in this way, now you can write the transpose of A, that is AJI, that will be equal to -AIJ. AIJ is the matrix C. So that is the AJI is the transpose of A is what? Transpose of that is the transpose of A dash, that is AJI. So this is a square matrices of transpose of A. The transpose of A dash AJI, that will be this. Now it is true for every I and J. For all I and J. For all I and J, that will be AJI equal to -AIJ. If I equal to J, now if you write I equal to J, in place of I you write J, then you got what? AII, that will be equal to -AII. AI in the place of J. J के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? J के स्थान पर हम I लिखते हैं. ये सभी I and J के लिए ट्रू है. क्या होता है? मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज नेगेटिव होता है. नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ट्रांसपोज होता है, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं.
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं। जैसे ए आई आई हो गया, यहाँ माइनस ए आई। अब हम इसको इधर कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2ai दैट विल बी इक्वल टू 0। तो 2ai दैट विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट व्हाट, aii that will be equal to 0. The aii is what? That is the diagonal element. This is a square matrix. The aii is which elements? The diagonal elements are the aii, a11, a22, a33. These are the diagonal elements. The diagonal elements are 0. So you can see the diagonals diagonal elements of skew, the diagonal element of skew symmetric matrices are always 0. The diagonal elements of skew symmetric matrices are always 0. The diagonal element of skew symmetric matrices क्या होता है, 0 होता है। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस 0 होता है, तो कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, हमें कंसीडर करते हैं अगर हम कोई मैट्रिक्स E कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स E कंसीडर करते हैं, E कोई मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं, यहाँ हम लेते हैं 0 माइनस E एंड F। अगर हम एक कंसीडर करते हैं माइनस F और फिर कंसीडर करते हैं माइनस E 0 और माइनस E 0 एंड माइनस G, E कंसीडर करते हैं और एफ जी 0 कंसीडर करते हैं, एफ जी 0 कंसीडर करते हैं E। तो E हम देखते हैं, E अगर हम देखें E तो E क्या है, E स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0। तो let A is a square matrix, let A is the square matrix, then so that what, A plus A dash, A and their transpose is symmetric, A plus A dash is symmetric and what, A plus A dash is symmetric and next A minus A dash is skew symmetric। स्क्यू सिमेट्रिक ये हमें दिखाना है, हमें शो करना है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिसेस है, यदि ये स्क्वायर मैट्रिसेस है तो हमें शो करना है, यदि ये स्क्वायर मैट्रिसेस है तो क्या होगा, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा और ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा। तो हम कैसे शो करेंगे, आप पहले देख चुके हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे शो करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो मान लीजिए ए पी है, लेट पी इक्वल टू ए प्लस ए डैश। अब इसको हमें दिखाना है कि ए सिमेट्रिक है, तो कैसे हम दिखाएंगे ए सिमेट्रिक है, कैसे हम दिखाएंगे, सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, अगर इसका ट्रांसपोज
वही मैट्रिक्स P आ जाता है, इट मीन्स दैट दिस वन इज द सिमेट्री। तो चलिए करते हैं, P का ट्रांसपोज करते हैं। तो P का ट्रांसपोज क्या होगा, A प्लस ए डैश इसका ट्रांसपोज। अब हम प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि A प्लस बी ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो A क्या हो जाएगा हमारा, इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो A क्या आ जाएगा हमारा, दिस विल बी व्हाट, A ट्रांसपोज एंड इसका ट्रांसपोज क्या आ गया, E, तो दैट इज व्हाट, A डैश E, एंड बाय द कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स होल्ड द matrix addition, hold the commutative law, so that we can write A plus E dash. So this will be equal to what? This will be equal to, that is the P. So therefore P dash equal to P. Hence this will be what? This is the symmetry. Hence if A is a square matrix, then A plus A dash is what? A plus A dash is symmetry. ठीक, अब हमें शो करना है, अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि A माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो A माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा, इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे। अगर इसका ट्रांसपोज नेगेटिव आता है तो हम ये शो करेंगे कि A स्क्यू सिमेट्रिक है। ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि A माइनस ए डैश, अब हम देखते हैं कि A माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक कैसे, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि A स्क्यू सिमेट्रिक हम कैसे शो करेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक, चलिए करते हैं। सेकेंड, ये तो हमें फर्स्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब हम सेकेंड दिखाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए मान लीजिए हमारा Q है, Q इज ए मैट्रिक्स ऑफ A माइनस ए डैश। अब हमें इसको शो करना है कि दिस विल बी द सिमेट्रिक्स, दिस विल बी द सिमेट्रिक्स। तो इसको हमें सिमेट्रिक दिखाना है, तो सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज लेते हैं इसका Q डैश, ट्रांसपोज करते हैं A माइनस ए डैश ट्रांसपोज। तो नाउ यू हैव लर्न, हम पढ़ चुके हैं कि दो एडिशन स्क्वायर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज क्या होता है, A प्लस बी ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डैश ट्रांसपोज माइनस ए डैश ट्रांसपोज ऑफ दिस, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज ए हो गया, ठीक। तो यहाँ ए डैश माइनस, अगर हम इसको माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ए हो जाएगा हमारा ए माइनस ए डैश, ठीक, ए माइनस ए डैश। Q डैश दैट इज Q डैश, Q डैश इक्वल टू क्या आएगा, माइनस Q। तो if Q dash transpose of a matrix is the negative of the matrix, so that it is a skew symmetric. So therefore this will be the skew symmetric. तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक। अब हाउ कैन यू एक्सप्रेस a matrix in the form of symmetric and skew symmetric? The any matrix you can write in the form of symmetric and the skew symmetric.
any square matrices can be expressed as in the form of symmetric and skew symmetric. So how you express a square matrix in the form of symmetric and skew symmetric? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए अभी आप देखें कि a प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक फॉर्म में होता है, और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में होता है। तो अगर हम देखें कि ए स्क्वायर मैट्रिसेस ए स्क्वायर मैट्रिसेस ठीक, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें किस फॉर्म में लिखना है, सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक में लिखना है और स्क्यू सिमेट्रिक में। इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो आप देखिए कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो हम उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे चेंज करते हैं, ट्रांसपोज लिए, और a प्लस ए डैश उसका सिमेट्रिक फॉर्म है, a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म है। अगर हम सिमेट्रिक फॉर्म यहाँ लिखते हैं a प्लस ए डैश और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म लिखते हैं a माइनस ए डैश, तो हमें यहाँ मैट्रिक्स A आना चाहिए, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मैट्रिक्स A आएगा। यहाँ देखिए a डैश कैंसिल हो गया, तो a डैश कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, और आना क्या चाहिए a, तो इसका मतलब कि a के इक्वल नहीं है, और a हमारा सिमेट्रिक फॉर्म है, a स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म है। तो अगर हम a के फॉर्म में हमें लाना है तो हाफ कर देते हैं, इसका भी हाफ कर देते हैं और इसका भी हाफ कर देते हैं। अब हम अगर राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो a के इक्वल आएगा। ठीक, तो a हमारा किस, a प्लस ए डैश ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि सिमेट्रिक फॉर्म में है, और a माइनस ए डैश ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में है, इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम a डैश फाइंड आउट कर लें, a प्लस ए डैश फाइंड आउट कर लें, a माइनस ए डैश फाइंड आउट कर लें, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के आधार पर आप इसको कर सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन करने के लिए, इसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करने के लिए कभी कभी एग्जाम में आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑटो, इसमें कुछ बचा नहीं है, और जो भी एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करिएगा। कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो हम बताइए। इसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसफर। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, जिसको कि इस साल के लिए, इस सेशन के लिए वो डिलीट कर दिया गया है, आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस है, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस देखेंगे, और इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स देखेंगे, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस देखेंगे, और इसके बाद मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में कुछ नहीं, बस यही है। एक है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, जैसे हम आइडेंटिटी ए इनवर्स करते हैं तो 1 आता है, तो उसी तरह से इसमें मैट्रिक्स के केस में होता है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स हो B जिसका कि A में प्रोडक्ट करें तो I आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो B को क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ है, तो ये होता है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। तो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या है देख लीजिए। इन्वर्टेबल
इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या है मैं बता दे रहा हूँ। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस में कुछ नहीं है, इसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स सबसे सिंपल चैप्टर है। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर m है और बी कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि आल्सो ऑर्डर m है। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर m है, तो ए बी का प्रोडक्ट, अगर ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो दैट इज द बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, तो दैट इज ए इनवर्स that will be equal to b. So this is the b is the a is the has the inverse matrix. The a is invertible. You can say a is invertible. बस इसमें यही देखना है। और इसका एक फार्मूला है, अगर a एक प्रॉपर्टी इफ a b इनवर्स, फार्मूला प्रूव करने के लिए नहीं है, इस साल आपको डिलीट कर दिया गया है, सिर्फ इसको जानते रहिए b इनवर्स ए इनवर्स। ये है आपका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो आप क्वेश्चन इसमें करिएगा। इसके बाद डिटर्मिनेंट है, इसमें कुछ क्वेश्चन प्रमुख हैं जिसको हम कोशिश करेंगे, समय मिले तो करा दें, नहीं आप अपने से करिएगा। जैसे मिसलेनियस, इसके चैप्टर 3 में दिया हुआ है, आपके चैप्टर 3 का जो मिसलेनियस है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 11। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एंड 11 और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं उसको जरूर कर लीजिए। ठीक, अब हम आगे अगला देखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या है। ठीक, आप हमें तभी आइडिया लगता है कि आप देख रहे हैं हमारा वीडियो, पढ़ रहे हैं कि नहीं, जब आप अपना उसे हम नहीं कर रहे हैं, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, जरूरी नहीं है, लेकिन लाइक करने से हमें ये एहसास होता है कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। ठीक, थैंक यू।